Bismillahirrahmanirrahim. The next chapter of strategic management, that is internal assessment. And internal assessment is also one of the most important chapters of strategic management. In the last two lectures, we covered about the following topics or contents, that was nature of external audit, industrial organizational view, external forces, particularly economic forces, social, cultural, demographic, and natural forces, political, legal, government forces, technological forces. So we covered these topics in the last two lessons. We also conducted competitive analysis, Porter's 5 force model, and we also learned to construct EFE matrix and competitive profile matrix. So that was the agenda of last two lectures. And now we are talking about internal assessment, or in this chapter we will understand the objective of internal audit, a resource-based view, understanding and integrating strategy with the culture, and understand key areas of management, marketing, accounting, finance, production, operation, research and development, and MIS. So we're gonna discuss these things in detail. We will also understand value chain analysis and internal factor evaluation matrix. So this is like very important. And this is the fourth chapter of this book, and these two like first four chapters are very important, and rest of the chapter depend upon these two understanding of these two chapters. There is a beautiful quote by Albert Einstein: "The great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds." So if you are like a brilliant company, so you will always be criticized, or you will always be your company will always be facing opposition from like average companies, or at organizational level, or within an organization. If you are like a brilliant individual, so you will always be criticized by your fellows who are like average individuals. So like it happens. Basically, successful of strategy depends upon the type of leadership you have in the organization. If you had like a sound strategy and you have a very good leader, so they're gonna be yielding very good results. But if you have very good strategy but you have a weak leadership, so they're gonna like wreck the soundest strategy basically. So you might be unsuccessful. So therefore, just formulation of strategy is not important. Leadership also matters. And how will you decide that who need to be promoted and who deserve this post? So basically, until and unless we will not conduct internal audit, we will never be able to find out the strengths and weaknesses of our organization. We will never be able to find good and bad, like between good and excellent and average individuals. So therefore, internal audit is very important. Why do we conduct internal audit? So that is the usual question that is asked. Basically, internal audit is conducted within an organization to identify the strength and weaknesses of the organization. So basically, to identify the strength and weaknesses of the organization, we conduct internal audit. Now the question arises that what are the areas of internal audit? So there are several areas of internal audit, and those areas are management, marketing, finance and accounting, production and operations, research and development, and MIS, management information systems.
Mean to say that we need to find out that how good we are in the field of management, marketing, accounting and finance, research and development, MIS, and research and production and operations. So we have to find out our level of capability in these areas. So if we are very good in management, accounting, marketing, finance, so it means that gonna be our strength. But if we are not good in these, so that will be counted as weakness. So that therefore we need to conduct an internal audit. After conducting the internal audit, we will be able to position ourselves in the strength and in the weakness section. Again, objective, why do we conduct internal audit, external audit, and vision and mission statement, evaluation of vision and mission statement? So basically the purpose of all these things is to formulate the strategies and to then implement them. That is the objective of these internal audit, basically these analysis, that we conduct internal audit to find out the strength and weaknesses. Similarly, we conduct external audit to identify threats and opportunities. And evaluation of mission statement basically tells us the game plan, basically how we gonna be doing our business. So these, until unless we do not have these three things, so we might be in a confusion while formulating the strategy. भी किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, किन एरिया में हमने काम करना है, कौन सी चीज़ को हमने एक्वायर करना है, किस तरह की प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसके फीचर्स क्या होंगे, तो उसकी टारगेट मार्केट क्या होगी, क्या हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते. We will only be able to answer these questions that I just highlighted when we have internal analysis and external analysis and understanding of mission statement, vision and mission statement. So they're gonna help us out in the formulation and implementation of strategies. So therefore it means internal audit is conducted to identify the strengths and weaknesses, and external audit is conducted to identify the opportunities and threats. Now we need to understand, whenever we are taking any initiative or we are deciding any game plan, so that those game plans must be based on your distinctive competencies. Now we need to understand what does it mean by distinctive competencies. Competencies are basically your strengths, firm's strengths, that can't be easily matched by your competitors or can't be imitated by your competitors. There are so many strengths that organization has. If those strengths cannot be imitated or cannot be copied by your competitors, it means that strength is your competence, distinctive competency. That is your distinctive strength. Now what you need to do? The first job when conducting internal audit, so when you have identified strengths and weaknesses, so now within those strengths you need to find out that who is your distinctive strength, who is your distinctive competencies. Now when you are finalizing your future game plan, so your future game plan must be based on distinctive competencies. And distinctive competencies will bring a competitive advantage for you. Building competitive advantage involving taking advantage of distinctive competencies. Now if you are taking an advantage over, if you are utilizing your distinctive competencies in order to build your competitive advantage, so that advantage will remain for a long time. हो सकता है अगर आपने कहा कि हमारे पास बिल्डिंग अच्छी है, दैट इज योर स्ट्रेंथ, अगर आपने उस बिल्डिंग की बेसिस पे अपनी कोई स्ट्रेटजी या अपना गेम प्लान चार्ट आउट कर लिया, तो हो सकता है कि कंपेटिटर्स
साल बाद आपसे बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना दे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर क्या करेगा? इट मीन्स कि वो जो आपकी कंपिटेंसी है वो खत्म हो जाएगी, वो आपका जो एज है वो खत्म हो जाएगा। तो लाइक द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जो आपका फ्यूचर गेम प्लान है वो ऐसी स्ट्रेंथ की बेसिस पे हो जो कंपेटिटर आसानी से कॉपी ना कर सके। अब वो ट्रेस आउट करने के लिए कि what is our distinctive competency, you have to conduct internal audit, or when you will conduct internal audit you will list down all the strengths, or when you have list down all the strengths then you need to find out what are the like most important strengths, what are the strengths that competitor don't have, what are the strengths which are greater than or which are like greater than your competitors। फिर जब आपने उनको ट्रेस आउट कर लिया तो वो आपके डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज हैं और आप अपना जो फ्यूचर गेम प्लान है उन स्ट्रेंथ्स की बेसिस पे बनाने की कोशिश करो। अगेन एज मेंशन दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो भाई इंटरनल ऑडिट जब भी करना है तो उनका मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, MIS, you need to conduct your internal audit in these areas। Again, as I just mentioned, that why do we conduct internal audit? Internal audit is conducted to find out the strength and weaknesses of an organization, so that those strengths and weaknesses can be utilized in order to chalk out the future game plan, or in order to develop the game plan, or in order to formulate the strategy for your organization। अब now question arises that how we can conduct internal audit। भाई इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए यू नीड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल एरियाज। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में मैनेजर्स काम कर रहे होंगे, तो भाई आपने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो इट मीन्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डिपार्टमेंट्स यू हैव टू अप्रोच like all the managers and employees working in those departments, क्योंकि वो आपको सही बता सकते हैं कि हमें क्या चीज़ हमारी वीकनेस है, कौन सी हमारी स्ट्रेंथ है। बट until and unless we will not approach them, और हम अपने एक ऑफिस में बैठ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस कोई वैलिड एनालिसिस नहीं होगा। दैट एनालिसिस विल नॉट बी लाइक अ रियलिस्टिक एनालिसिस। वो शायद आपकी एक परसेप्शंस तो हो सकती हैं बट वो रियलिटी बेस नहीं होता। जब वो रियलिटी बेस नहीं होगा तो फिर उसके कोई उससे अच्छी तवक्को भी नहीं रखी जा सकती। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट एनालिसिस। तो देखिए दिस एनालिसिस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द रियल पिक्चर, और इफ वी आर अनएबल टू ड्रॉ द रियल पिक्चर सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट एक्सरसाइज। सो वो जो एक्सरसाइज है दैट इज यूजलेस। तो आपने ऐसा अपना क्यों टाइम वेस्ट करें? वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, वाई वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी if we are not collecting relevant information from relevant people। तो इसीलिए भाई इंटरनल ऑडिट जब भी करें आपने टाइम लग जाए, आपको जितना ज़्यादा आप टाइम बाय करें, लेकिन एनालिसिस आपका एक्यूरेट होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो हो कि अच्छा अगर 1 माह में नहीं पहुंचे तो हम 2 माह में एनालिसिस कर लेंगे, 2 माह में नहीं पहुंचे तो ओके वी गोना बी एबल टू फिनिश आवर एनालिसिस बाय 6 मंथ। लेकिन यू नीड टू अप्रोच ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द एम्प्लॉइज सो दैट you have a real picture. But if you conducted the analysis by consulting the relevant people, so then your analysis is gonna be much valid. वो आपको real sense में guide करेगा. तो like you need to, it mean my first point is that you need to collect information from managers and employees from all areas. वो marketing के, finance के, research and development के, MIS के जो हमने areas discuss किए तो उन सब से उनको collect करना. A team of manager then select 10 to 15 key organization strength and weaknesses to focus on. अब फिर आप कोई अच्छे मैनेजर बिठाएं, 5, 7, 10 जितने भी हैं की मैनेजर जिन्हें उसकी सेंस हो. अब ये ना हो कि आप एक ऐसे आदमी को कंसल्ट कर लें कि अच्छा भी आप डिसाइड कर दो कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जिसका अपना एक्सपोजर ही ना हो, तो दैट गोना बी लाइक मिसलीडिंग कैलकुलेशंस. तो वी नीड टू अवॉइड मिसलीडिंग कैलकुलेशन. तो आप एक ऐसे आदमी को, इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को आप ये ड्यूटी असाइन करें कि वो 8-10 लोग जो भी हैं जो की इंडिविजुअल्स हैं उनमें वो डिस्कस करें कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, क्या ये हमारी वीकनेस बनती है, स्ट्रेंथ बनती है, क्या है, मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है. तो इन दिस वे
फिर आप उनको कैटेगराइज कर लें कि ओके दीज आर आर की स्ट्रेंथ एंड दीज आर आर वीक एरियाज. तो इफ यू हैव लाइक फाइंड आउट योर की स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज, सो इट्स मीन you did a wonderful job. Now let's discuss resource based view. So I think आपको इंटरनल ऑडिट हम क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है, that's what we have understand. So it mean we have understand the objective of internal audit and then areas of internal audit and हम कैसे internal audit किया जा सकता है. तो we had some discussion about that. अब है रिसोर्स बेस्ड व्यू. रिसोर्स बेस्ड व्यू में लोग जो प्रोपोनेंट्स हैं इसके, जो इसके फेवर करते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई इंटरनल रिसोर्सेज आर मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल फैक्टर्स. बात किसी हद तक ठीक भी है भाई. अगर आपके बाहर अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह का कोविड-19 आया तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आईटी अपॉर्चुनिटीज, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग ही नहीं हैं जो आईटी ऑपरेशन को डील कर सकें. तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा. तो इट मींस इंटरनल रिसोर्सेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो देयरफॉर ये रिसोर्स बेस्ड व्यू समझता है कि आपके एम्प्लॉइज, आपके लाइक इंटरनल रिसोर्सेज दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल फोर्सेज. और वो कहते हैं कि रिसोर्सेज किस तरह के होते हैं. वो कहते हैं कि रिसोर्सेज बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है इन 3 कैटेगरीज में. और वो 3 कैटेगरीज कौन सी, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. और फिजिकल रिसोर्सेज में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर हो गया, आपकी मशीन्स हो गई, आपके लाइक प्लांट हो गया, लैंड हो गई, वेयर हाउसेज हो गया, मशीनरी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, लाइक देयर आर सो मेनी, दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज. अब ये भी एक स्ट्रेंथ है लाइक आपके पास कितना आपके पास इन्वेंटरी का लेवल है और कितने आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज. देन ह्यूमन रिसोर्स, के आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कितना कैपेबल है, वो कितने ट्रेंड हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कितने प्रोफिशेंट हैं, वो कितने नॉलेजेबल हैं, कितना उनको मार्केट का एक्यूरेट वे में उनको सेंस है, वो कितने अपडेटेड हैं, लाइक दैट मैटर्स. तो वो भी एक ह्यूमन लाइक रिसोर्स है. थर्ड रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेसेस कैसा है, प्लानिंग कैसे है, एमआईएस कैसे है, लाइक दीज आर द एरियाज. अब रिसोर्स बेस ये कहता है कि एक्चुअली इंटरनल रिसोर्सेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल रिसोर्सेज. और वो जो रिसोर्सेज हैं वो इन 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं. वो कहता है कि बेसिकली ये जो रिसोर्सेज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑर्गेनाइजेशन जिसके इंटरनल रिसोर्सेज बेहतर हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर सकती है. अब वो कहता है कि जो रिसोर्सेज आपके होने चाहिए ना, जो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज हैं, कि दे आर रेयर, हार्ड टू इमिटेट एंड नॉट इजीली सब्स्टिट्यूटेबल. ऐसे रिसोर्सेज हु आर रेयर, विच आर रेयर and are difficult to imitate and whose substitute not easily available. अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं तो वो आपकी, आप कह लें कि कंपिटेंट, हाईली कंपिटेंट रिसोर्स है आपके पास, हाईली डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसी है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की. और ऐसी का ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास ऐसी डिस्टिंक्टिव कंपिटेंसीज एग्जिस्ट करती हैं और वो उनको यूटिलाइज भी करती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ compete करना बहुत मुश्किल होगा. Or in other words, we can say the organization which have like distinctive competencies, so those organization can outperform their counterparts. Outperform means that they can like उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उनके competitor उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे. Or in other words, we can say that companies having distinctive competencies, their performance gonna be much better than counterparts. तो रिसोर्स बेस्ड एज्यूम करता है कि आपके भी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के मैटर करते हैं, कितने अच्छे हैं आपके. तो लाइक दैट मैटर, दैट इज रिसोर्स बेस्ड व्यू. आई थिंक आपको ये भी अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा कि रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या अज्यूम करता है. रिसोर्स बेस्ड व्यू ये अज्यूम करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में भाई ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का, इंटरनल रिसोर्सेज का बड़ा रोल है. और इंटरनल रिसोर्सेज जो कैटेगराइज उसने कहा जी ये फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं. और इन रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में बड़ा रोल है.
और वो कहते हैं पर्टिकुलरली उन रिसोर्सेज का जो कि हार्ड टू इमिटेट हूँ और डिफिकल्ट टू सब्सिट्यूट, मीन लाइक जिनका सब्सिट्यूट इजीली अवेलेबल ना हो और वो रेयर हो, तो फिर उनका तो कमाल हो जाएगा, लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म कर देगी और कंपेटिटर्स को। तो लाइक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्स बेस्ड व्यू कहता है। अब एक और चीज भी है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उनका कल्चर उसको सपोर्ट ना करे। इसीलिए जब भी आप इंटरनल एनालिसिस करें तो आपने कल्चर को भी जरूर एनालाइज करना है कि व्हाट काइंड ऑफ कल्चर द ऑर्गेनाइजेशन हैज। जब तक हम कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और कल्चर को लाइक हम उसको पॉजिटिवली नहीं दे, लाइक हम उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे कि किस तरह का कल्चर है, वेदर इट्स अ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो जब तक हम इस चीज़ को एनालिसिस नहीं कर लेंगे और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेट नहीं कर लेंगे कि ये कल्चर किस तरह का है, ये कल्चर जो हम गेम प्लान या स्ट्रेटजी हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसको सपोर्ट भी करता है या नहीं करता, जब तक हम ये एनालिसिस नहीं कर लेंगे तो हो सकता है कि हम जो उससे स्ट्रेटजी से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें शायद ना मिले। तो इसलिए कल्चर को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है और कल्चर की बेसिस पे हमें ये भी ट्रेस आउट करना ज़रूरी है कि ये जो कल्चर है ये हमारी उस स्ट्रेटजी के लिए सपोर्टिव है या एक कॉन्स्टेंट्स के तौर पे है, तो इसको बड़ा ज़रूरी है। तो कल्चर के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है तो उसको हम देख लेते हैं और इन पैरामीटर्स की बेसिस पे हम बेसिकली ये डिटरमिन करेंगे कि वेदर हमारा कल्चर जो है वो सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है। अब कल्चर की कैसे हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। कल्चर में सबसे पहली जो बिलीफ्स हैं, अब देखिए ये बेसिकली तो कंट्री कल्चर के बारे में ये कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन में, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री में कल्चर कैसे बिलीफ्स। अब लेट्स अप्लाई टू द बिलीफ्स। अब बिलीफ्स वो होते हैं कि जिस पे हम फुली कन्विंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मसलन आप ये समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जी अगर प्रमोशन है ना तो वो जस्ट मेरिट बेस्ड होती है। अगर आप इस पे कन्विंस हैं और आप ये समझते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन परफॉर्मेंस के बगैर होती ही नहीं है, तो ये आपका एक बिलीफ है। और अगर आपका ये बिलीफ है तो फिर आपका बिहेवियर भी ये होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए लाइक यू गोना स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे परफॉर्मेंस के बगैर प्रमोशन नहीं होनी। अब ड्यू टू दिस बिलीफ आपका बिहेवियर देखें कि हम ना कोशिश करेंगे कि हम ना बड़ी परफॉर्मेंस शो करें, दैट इज योर बिलीफ। अगर बिलीफ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन जो है वो रिलेशनशिप बेसिस पे होती है, ये भी एक बिलीफ है। बिलीफ अच्छा या बुरा हो सकता है। इफ वी हैव दिस बिलीफ कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन जो है वो बिलीफ्स की बेसिस लिंक्स की बेसिस पे होती है, तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस पे कम फोकस करेंगे और हम रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे। हम ताल्लुक मेंटेन करेंगे, हम लोगों को खाने खिलाएंगे, हम उनको गिफ्ट देंगे और हम उनको लाइक वी विल ट्राई टू बिल्ड द गुड रिलेशनशिप्स, क्योंकि हमारा बिलीफ ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोग्रेस है या जो प्रमोशन है वो रिलेशनशिप की बिल्डिंग पे होती है। लाइक आप देखें कि बिलीफ्स आर गाइडिंग आवर बिहेवियर्स, तो इसलिए बिलीफ्स को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बिलीफ्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी यूनिवर्सिटी में देखें तो आप बच्चों का अगर बिलीफ ये समझते हैं कि अच्छा जी इसमें जो ग्रेडिंग होती है वो पेपर में हम क्या लिखते हैं उस बेसिस पे होती है। अगर आपका ये बिलीफ है, ये आपका बिलीफ हुआ, और अगर आपका ये बिलीफ है तो आप कोशिश करोगे, तैयारी करोगे, आप लाइक प्रॉपर असाइनमेंट दोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रेडिंग है वो मेरिट पे होती है। तो इट मीन्स योर बिहेवियर गोना बी एंटायरली डिफरेंट। तो ये भी आपका एक बिलीफ था कि ग्रेडिंग मेरिट पे होती है। इस तरह आप समझते हो कि अच्छा अटेंडेंस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो ये भी आपका बिलीफ है, डिपार्टमेंटल बिलीफ है। अब ये कहते हैं कि अच्छा यूनिफॉर्म पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हमारा डिपार्टमेंट करता, तो ये भी एक बिलीफ है। और ये बिलीफ आपके बिहेवियर को गाइड करेंगे। अगर आप ये यकीन रखते हैं कि यूनिफॉर्म पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो फिर जब भी आप कभी क्लास में आओगे आप यूनिफॉर्म में आओगे। अगर आपका ये बिलीफ है कि अटेंडेंस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो आप अपनी क्लास में रेगुलर रहोगे, ये आपका बिहेवियर है। तो एक्चुअली बिलीफ्स आर गाइडिंग योर बिहेवियर। तो अब हमने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बिलीफ फाइंड आउट करने हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बिलीफ्स क्या हैं। फिर उन बिलीव्स को अपनी स्ट्रेटजी के साथ लिंक करना है कि क्या ये पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव बनता है, क्या वो स्ट्रेटजी के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर तो फेवरेबल है तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी, अदरवाइज इट गोना बिकम वीकनेस। तो ये
बिलीफ्स के बाद देन वैल्यूज को आप देखिए। कुछ चीजें ना हम फुली कन्विंस नहीं होते लेकिन वो अप्रिशिएट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। उसके बारे में कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता लेकिन अगर हम वैसा काम करें, अगर हम कुछ चीजें काम कर रहे हों तो लाइक उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर ऐसा है तो वो हमारी वैल्यू सिस्टम है। इट्स मीन उस चीज़ को वैल्यू दी जाती है, उन प्रैक्टिसेस को वैल्यू दी जाती है, उन बातों को वैल्यू दी जाती है अगर ऐसा है तो। मसलन आप और यूनिवर्सिटी में आए और वहाँ हम चीज़ें जब भी फेंकें तो हम बिन में फेंकें। अब ये एक ऐसा एक्ट है जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, डिपार्टमेंट अप्रिशिएट करता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्ची बहुत अच्छी है, लाइक जो प्रॉपर बिन का यूज़ कर रहे हैं अपने गार्बेज के लिए। तो ये एक वैल्यू सिस्टम है कि इस बात को वैल्यू दी जाती है। आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, बिल्डिंग का बड़ा ख्याल रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, दीवारों पे नहीं लिखते, तो ये एक अच्छी बात है, वैल्यू इसको देता है ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रॉपर हेयर कट के साथ आते हैं तो लाइक इसको वैल्यू देता है कि टीचर अप्रिशिएट यू आर गुड लुकिंग स्टूडेंट या लुकिंग नाइस। तो ये उस चीज़ की एक वैल्यू कंसीडर की जाती है। इसी तरह टाइम पे आना वैल्यू कंसीडर करना, सिंसेरिटी के साथ काम करना, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होना, नेगेटिव पॉलिटिक्स में, लोगों को साथ कोऑपरेट करना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, गाइड करना, लाइक आप ये दीज आर वैल्यूड कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो इनको अच्छा समझा जाता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अच्छा समझा जाता है, तो उनको भी जानने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वैल्यू देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छी या बुरी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। तो लाइक हमें उन चीज़ों को भी जानने की ज़रूरत है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के में बिलीफ एग्जिस्ट करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वैल्यू देती है ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ राइट्स एंड रिचुअल्स होते हैं। बेसिकली ये टर्म्स तो रिलीजियस टर्म्स हैं कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर। राइट्स वो होती हैं कि जो हमने कोई फंक्शंस इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। मसलन ऑर्गेनाइजेशन कहती है जी हमारी एनुअल परफॉर्मेंस इवेंट है, तो वो उसकी राइट्स हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल इफ ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई एनुअल फंक्शन होता है तो दैट इज़ राइट्स। और देन इसी तरह कोई लाइक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वी हैव स्पोर्ट्स गाला, तो राइट्स हैं। हमारे वेलकम पार्टीज, फेयरवेल पार्टी, दीज आर राइट्स। इस तरह कोई लाइक डिग्री अवार्डिंग जो सेरेमनी होती है दैट इज़ राइट, आल्दो कि हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही, लेकिन अगर होती है तो उसको राइट हम कंसीडर कर सकते हैं। अब वो कैसे सेलिब्रेट होती हैं, दीज आर कॉल्ड रिचुअल्स। उसमें जी अच्छा ओपनिंग स्पीच होगी, उसमें नात होगा, उसमें हमने कुरान मजीद की तिलावत करेंगे हम, देन स्पीच होगी, वेलकम स्पीच होगी, फेयरवेल, उसमें कुछ स्किट्स, कोई सॉन्ग्स, कोई डांस, कोई लाइक वट एवर जो भी उसमें शामिल है। तो लाइक वो रिचुअल्स है कि हम उसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो दीज राइट्स एंड रिचुअल्स, तो बेसिकली आपने इन चीज़ों को भी जानने की ज़रूरत है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की राइट्स एंड रिचुअल्स क्या हैं। देखें अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सेरेमनी हो रही है तो ये एक बड़ी फेवरेबल है कि एक चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सेरेमनी हो रही है वो लोगों की एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए कोई सेरेमनी हो रही है। तो इट मीन्स कि उससे क्या, अगर इस तरह की सेरेमनी हो रही है तो सारे लोग कोशिश करेंगे कि हम भी, हमारा भी नाम अगली दफ़ा आ जाए इस सेरेमनी में, ताकि हमें भी अवार्ड मिल जाए, हम भी अप्रिशिएट हो, लोग हमें भी जाने। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेट है। अगर पता चले हम म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, तो शायद वो जो राइट्स एंड रिचुअल है शायद वो फेवरेबल नहीं है या इतनी सपोर्टिव नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी के लिए। तो आपने इन चीज़ों को जानने की कोशिश करना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में राइट्स एंड रिचुअल्स कैसी हैं। तो बेसिकली इन बहुत सारे कल्चर के पैरामीटर्स की बेसिस पे आपने ये डिसाइड करना है कि आपका कल्चर आपकी स्ट्रैटेजी के लिए या आपके फ्यूचर गेम प्लान के लिए सपोर्टिव है या नॉन सपोर्टिव है। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डिसाइड। तो राइट्स एंड रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम मिथ्स भी होती हैं कि समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन हम ऐसा समझते हैं। अगर कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि लोग समझते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन रियलिटी में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड मिथ्स। तो आपने उनको भी जानने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन में यकीन किया जाता है। मसलन कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा जी जनाब ये फेवरेटिज्म होता है, पता चले उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फेवरेटिज्म नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो मिथ है। तो आपने उनको भी जानने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के मिथ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमें चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो हम कैसे उसका लाइक गेम प्लान डिवाइस कर सकते हैं।
हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? जब हमें पता चल गया कि दिस इज आवर वीकनेस, तो फिर हम उसका करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। इस तरह हीरोज एंड सिंबल्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज एंड सिंबल्स क्या हैं। समटाइम हम कहते हैं जी ऑनेस्टी हमारा सिंबल है। आप बाहर जाएं तो सारे लोग ईमानदार हैं, लाइक वो अपने ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे लोग ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, टाइम पे आते हैं, पंक्चुअल हैं, रेगुलर हैं, कमिटेड हैं, अपनी जॉब पे फोकस हैं, तो इट्स मीन, अब देखिए हमारे सिंबल क्या है। हमारे सिंबल है ऑनेस्टी, हमारे सिंबल है कमिटमेंट, हमारे सिंबल है पंक्चुअलिटी, हमारा रेगुलरिटी। लेकिन ये हमारे सिंबल, अगर हम लेट आते हैं तो हमारे सिंबल ये है कि पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं। अब इट्स मीन हमारा जो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो जानी जाती है वो पॉलिटिक्स की वजह से या लाइक बैड ट्रेड्स की वजह से जानी जाती है, तो वो बैड सिंबल है की वजह से जानी जा रही। तो हमने उन सिंबल्स और हीरोज को भी जानने की ज़रूरत है। पता चले हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग ज़्यादा पॉपुलर हों जो काम ही नहीं करते। अगर काम ना करने वाले लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनको लोग आइडियलाइज कर रहे हैं, तो इट मीन वी हैड अ वेरी वीक कल्चर। तो इट मीन हमारे हीरोज कोई और हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ठीक नहीं है। तो हमने ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल्स क्या हैं, किस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जानी जाती है, डिपार्टमेंट किस वजह से जाना जाता है। तो लाइक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी। तो हमारे सिंबल्स एंड हीरोज हैं। लेजेंड्स भी हैं, लेजेंड भी वही है। लेजेंड्स समटाइम हीरोज हमारी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेजेंड ये होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। हीरोज ऐसे भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम, अगर मैं डिपार्टमेंट लेवल की बात करूं तो हमारे फॉर एग्जांपल बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसने बड़ी अच्छी थ्रेड, उसने रेगुलर भी रहा, पंक्चुअल भी रहा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को भी फॉलो किया, प्लस उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, प्लस उसने अच्छे ग्रेड्स भी लिए और उसने प्रैक्टिकल स्किल्स भी लिए और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का भी पार्ट था। अब जब हमारा एनुअल फंक्शन हो तो हम उस बच्चे को सामने लेके आए कि ये हमारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, और ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस वजह से है, इन 5, 7, 20 ट्रेड्स की वजह से। अब जब हम बच्चों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे उसको हीरो के तौर पे, अब बच्चे हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो उस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं वो ये समझेंगे कि अच्छा, अगर हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना है तो हमने ये खूबियाँ अडॉप्ट करनी है। इस तरीके से हमने बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि अच्छा भाई, हम इस तरह का बच्चा बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा हीरो हुआ वो बच्चा। इसी तरह अगर हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा हीरो नहीं है तो हम लाइक बाहर से कोई बच्चा लेके आए कि अच्छा ये है जी हमारा, इसको हम रिकग्नाइज करते हैं, उसको सामने लेके आए कि अच्छा दिस इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, हम इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और इसको हम इस वजह सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्योंकि इनकी ये अकम्पलिशमेंट है। अब वो हमारे लिए लेजेंड है। अब हमने ये इस तरीके, इस एक्सरसाइज से हमने बच्चों को क्या मैसेज दिया कि भाई हम इस तरह का बच्चा बनाना चाहते हैं, हम इस तरह के स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, तो हमारे लेजेंड्स हैं। तो हमने अपने डिपार्टमेंट में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने हीरोज एंड लेजेंड्स क्या हैं उनको प्रमोट करना चाहिए और वो ढूंढने की कोशिश, क्योंकि हम तो इस वक्त अब एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो अब हमने ये देखना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज और लेजेंड्स कौन है। तो उस बेसिस पे अब हमने देखना है कि ये जो कल्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन का जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ बनता है या वीकनेस बनता है, और हम इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे अपने फ्यूचर गेम प्लान से या अपनी स्ट्रेटजीज के साथ। अगर हमारा कल्चर उस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है तो हम कह देंगे कि ये जो कल्चर है दैट इज सपोर्टिव और ये दैट इज अ स्ट्रेंथ, लेकिन अगर कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता तो हम कहेंगे ये वीकनेस है। तो लाइक ये कल्चर, आई होप आपने कल्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हमने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये जो कल्चर है, is it supportive to our future game plan or is it supportive to the strategy that we are going to pursue? अगर ऐसा है कि ये उसकी स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है तो देन फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। अगर वो कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता, रेजिस्ट करता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये कल्चर हमारा वीकनेस है। तो लाइक इसको बड़ा ज़रूरी है। तो स्ट्रेटजी की इंटीग्रेशन, तो बेसिकली स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपकी कल्चर और स्ट्रेटजी की इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। कल्चर आपका अगेंस्ट है और काम आप ऐसे कर रहे हैं तो वो लाइक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लें, अब हमारा कल्चर यही है कि हम मजा लें, तो थोड़ी बहुत ही भी रिलैक्सेशन दें, ये इबादत गाहों पे,
अब वो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया कि हम ना वो एक कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट इस्लामाबाद में, तो उसको गवर्नमेंट को बड़ा क्रिटिसिज्म है इस चीज़ के बारे में, ड्यू टू लाइक हमारा कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता, लोग उसको फेवर नहीं करते, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि टेम्पल कंस्ट्रक्ट नहीं होने दे रहे। तो लाइक हमने ये देख लेना चाहिए कि हमारा कल्चर कैसा है, तो उस कल्चर को बेसिस पे हमने अपनी स्ट्रेटजी और फ्यूचर गेम प्लान डिसाइड करना चाहिए। अगर हमारा कल्चर उसको सपोर्ट नहीं करता और हम उसको प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें रेजिस्टेंस आएगी, वो अनसक्सेसफुल रहेगा, आपकी एनर्जी ऐसे ज़ाय हो जाएगी। तो इसलिए आपने उस कल्चर को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, कल्चर को और उसका स्ट्रेटजी के साथ क्या लिंक है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कि आप उन पैरामीटर्स की एक लिस्ट बना लें, वो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स हैं, फिर उनको आप रैंक कर लें, उनको जो भी 10, 15, 20 जो भी ट्रेड्स हैं आपके कल्चर की उसको लिख लें और फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखें। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, अराइव अर्ली एंड लीव लेट, मतलब एक ये पैरामीटर कर लिया कि लोग किस वक्त आते हैं, कब जाते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाइक सारे लोग टाइम पे आते हैं और लेट सिटिंग करते हैं, तो इट मीन ये कल्चर बन चुका है, तो इसको हम अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है तो उसे 5 ग्रेड दे दें, अगर ऐसा नहीं है तो 1 दे दें। हाई एथिकल बिलीव्स, क्लियर कोड ऑफ बिजनेस एथिक्स फॉलोड, कि हम सारे लोग अपने जो भी स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो 5 दे दें, अगर नहीं हो रहा तो भाई 1 दे दें, बिल्कुल नहीं हो रहा तो 1 दे दें या 0 दे दें। फॉर्मल ड्रेस कोड, शर्ट एंड टाई एक्सपेक्टेड, कि हम बिल्कुल इस तरह के नाइसली ड्रेस्ड आप जिस तरह बैंक्स में होता है, तो लाइक अगर ऐसा है तो 5 दे दें, अगर बिल्कुल ऐसा नहीं है तो 1, 2 दे दें। इनफॉर्मल ड्रेसिंग में आते हैं कैजुअल, तो उसको आप देख लें। सोशलाइज टुगेदर आउटसाइड ऑफ वर्क, वर्क के बाद लोग कितने सोशलाइज होते हैं उसको देख लें। डोंट क्वेश्चन सुपरवाइजर डिसीजन, कि हमारा कल्चर अगर ऐसा है कि जो बॉस ने कर लिया वैसा ही है बस, और कोई इस पर बात नहीं हो सकती, तो फिर उसको देख लें। इनकरेज विसल ब्लोइंग, के क्या अगर कोई बैड प्रैक्टिस चल रही हैं तो क्या और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको हाईलाइट किया जाता है या नहीं। अगर उस पर चुप रहते हैं तो इट्स मीन विसल ब्लोइंग नहीं है, अगर उस पर चुप नहीं रहते, हम इन्फॉर्म करते हैं, हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, तो उसको आप ज़्यादा ग्रेड दे दें। तो लाइक आपने इन पैरामीटर की बेसिस पे डिसाइड करना है कि हमारा कल्चर जो है किस तरह का है, सपोर्टिव है या अनफेवरेबल है। इसी तरह हैव अ वेलनेस प्रोग्राम, वर्क फ्रॉम होम और क्रिएटिविटी, ओपननेस, इनोवेशन, नो ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग भी एक टर्म है ह्यूमन रिसोर्स में यूज़ होती है, कि मसलन वो बेसिकली नज़र तो नहीं आता है अपेरेंटली, लेकिन वो ग्लास लगाया होता है, हम जा नहीं सकते अंदर। पर्टिकुलरली ये फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि हम कहते तो हैं कि अच्छा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, सारे फीमेल भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह की कोई कंडीशंस या इस तरह की कोई इनफॉर्मल हमने उसमें ना कंस्ट्रेंट्स लगाई होती हैं कि वो लोग नहीं आ सकते। मसलन ग्लास सीलिंग में हम एक एग्जांपल दे देते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा सारे फीमेल भी काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम कर सकते हैं लेकिन फीमेल के तो बच्चे भी होंगे। अब बच्चों के लिए हम कोई डे केयर सेंटर ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, हम कहें जी अच्छा फीमेल काम कर सकते हैं और उनके लिए कोई हॉस्टल का बंदोबस्त ना हो, से दूर दरार हमने कोई यूनिवर्सिटी बना दी है या कोई हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दी है और उधर हम कहेंगे इक्वली फीमेल काम कर सकती हैं जी। अब लेकिन वहाँ उनको अकोमोडेट करने के लिए मैकेनिज्म ना हो, डे केयर सेंटर ना हो और लाइक उनकी अकोमोडेशन ना हो, तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेगी कि अच्छा इधर काम नहीं करना, मैं हम चले ही जाएं। तो ये क्या होगा, ये ग्लास सीलिंग है कि ग्लास नज़र नहीं आता ना दूर से, तो ये बेसिकली ग्लास सीलिंग हमने की हुई है कि नहीं भी है और है भी सही, नज़र भी नहीं आता और एग्जिस्ट भी करती है कंडीशन फीमेल को ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने से रोकने के लिए। तो ग्लास सीलिंग आप देखने कि ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बी हाईली सोशली रिस्पॉन्सिबल, फिलैंथ्रोपिक, न्यूमरस मीटिंग्स, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। तो लाइक ये डिफरेंट पैरामीटर्स तो और भी हो सकते हैं, मसलन वो जो हमने कल्चर के पैरामीटर डिस्कस किए आप उनको सामने रख के अपनी चेकलिस्ट बना लें। ये 15 लिस्ट है तो आप 20 बना लें, आप इसमें से कुछ रिमूव कर लें एंड देन ट्राई टू स्टडी द कल्चर ऑफ द योर ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा, फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो आई होप आपने कल्चर को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मैं अगेन इसको कंक्लूड कर दूं कि देखें
आपकी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक इसका कल्चर इंटीग्रेटिव नहीं होगा आपकी स्ट्रेटजी के साथ। तो कल्चर का स्ट्रेटजी के साथ इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू सक्सेसफुल, अदरवाइज भाई वो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो लाइक दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अब हमने कल्चर को भी अंडरस्टैंड कर लिया और उसका लिंक हमने स्ट्रैटेजी के साथ भी इस्टेब्लिश कर लिया, और हमने कल्चर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसको स्ट्रेंथ या वीकनेस के तौर पे रेट करना है, हमने उस चीज़ को भी डिसाइड कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं एरियाज ऑफ एनालिसिस। इंटरनल ऑडिट जब हमने करना है तो किन किन एरियाज में हमने इंटरनल ऑडिट करना है। तो हमने पहले भी बता चुका था कि पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में हमने डिस्कस किया था कि हम ये देखना चाहते हैं इंटरनल ऑडिट करने के बाद कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, उसके लिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। देन वी हैड अनदर क्वेश्चन कि हमने किन एरियाज में कर सकते हैं, तो उसका आंसर ये था कि हम मैनेजमेंट में देखेंगे, मार्केटिंग एरियाज में देखेंगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन को देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखेंगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को देखेंगे, इन एरियाज में। तो अब हम पहले देख रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अब क्या देखेंगे, मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हम सारी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम डिसीजन करते हैं तो हम कितनी प्लानिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन पे हम कितना फोकस करते हैं, मोटिवेटेड कितने होते हैं, मोटिवेटिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग उसको करने के लिए लोग कितना, हम रिसोर्सेज उनको कितना एलोकेट करते हैं, देन उसको कंट्रोल करने की कितना कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। समटाइम हम डिसीजन कर लेते हैं कि अच्छा जी ये करना है, वी हैवंट ऑर्गेनाइज इट। ऑर्गेनाइज क्या होता है कि हम वो काम लोगों को एलोकेट भी करें कि अच्छा ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, फिर उनको नेसेसरी स्टाफ भी दें, फिर उनकी मॉनिटरिंग भी करें कि अच्छा आपने ये फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स देनी है, आपने वीकली रिपोर्ट्स देनी है आपने वीकली रिपोर्ट्स देनी है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि हमारी मैनेजमेंट हमारी ठीक नहीं है। हमारे ऐसे ही कभी कुछ चीज़ें हो गई, फिर हमें कोई महीने बाद पता चलेगा अच्छा ये तो हमारी चीज़ें पेंडिंग ही हैं। तो अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो इट्स मीन वी आर नॉट गुड मैनेजर, हमारी मैनेजमेंट नहीं है, अच्छी नहीं है। तो ये हमारी एक वीकनेस कंसीडर होगी। अगर हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर प्लानिंग से हो रही हैं, देन वी आर ऑर्गेनाइजिंग, इट्स मीन वी आर एलोकेटिंग वर्क्स, लोगों को दे रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन वी आर ऑर्गेनाइजिंग वर्क, देन हमारे पास प्रॉपर उनको स्टाफिंग भी कर रहे हैं, उनको कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं कि अच्छा ये काम ऐसे करना है, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो आपने इन्हीं पैरामीटर की बेसिस पे आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, उसको एवेलुएट करना है। अब मसलन ये मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, बेसिकली इसको हम फंक्शन भी कहते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग और स्टाफिंग, लोग डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं, बट समटाइम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाता है कि लीडर का ये रोल होता है कि आप लोगों को मोटिवेट भी करे और उसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज भी दे। तो बेसिकली अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो वो प्रॉपर आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगी। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी अच्छी है, प्रॉपर लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेलीगेट की हुई हैं, रिटर्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, तो देन ये आपकी इंप्लीमेंटेशन में। इसी तरह मोटिवेट कर रहे हैं, उनको स्टाफिंग कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में। कंट्रोलिंग जो फंक्शन है कि लोगों ने काम किया या नहीं किया, तो ये स्ट्रेटेजी एवेल्युएशन में आएगा। तो बेसिकली मैनेजमेंट की आपने ये चारों फंक्शन को देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन में, लीडिंग में और कंट्रोलिंग में कैसी है। तो उन एरियाज में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेट करना है और फिर आपने डिसाइड करना है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इंप्रूव लाइक्लीहुड ऑफ अटेनिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जब तक आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट कैन नॉट सक्सीड। तो आपने बेसिकली देखना है टू व्हाट एक्सटेंट योर ऑर्गेनाइजेशन इज have proper plans, और प्लान्स हमेशा ब्रिज का रोल प्ले करते हैं बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट के दरमियान। प्लान ही नहीं है तो भाई आगे क्या करोगे। तो प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कि बेसिकली प्लानिंग एक बिगिनिंग प्रोसेस है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट प्रोसेस का एक फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले प्लान करते हैं कि हमने करना क्या है, फिर हम उस प्लानिंग की बेसिस पे हम आगे चलते हैं। तो जब प्लानिंग ही नहीं है तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। तो अगर प्लानिंग हम करते ही नहीं, किसी चीज़ों की प्लान ही नहीं है, फ्यूचर प्लान ही नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, दैट गोना बी वीकनेस ऑफ योर मैनेजमेंट की कॉन्टेक्स्ट में, वो आपकी वीकनेस है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। तो अगर प्रॉपर प्लान है तो ये लाइक्लीहुड है बेसिकली अटेनिंग डिजायर्ड रिजल्ट। अगर प्लान ही नहीं है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे हमारे रिजल्ट क्या निकलेंगे।
प्लान है तो देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा इट्स गोना बी यील्डिंग गुड रिजल्ट्स. Planning will lead towards developing a mission, forecasting future events and trends, establishing objectives, choosing strategies to pursue. प्लानिंग ही अगर होगी तो फिर ये काम बनेगा ना. हम स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करेंगे, हम किस एरिया में काम करेंगे, हमारा विजन क्या होगा. लेकिन अगर प्लानिंग ही नहीं है तो हम ये कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते अच्छा हमने कौन सी प्रोडक्ट बनानी है या नहीं बनानी. तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अब हमने इस चीज़ को देखना है, हम एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं. ये तो खैर प्लानिंग की एक इंपॉर्टेंस पे बात हो रही है कि अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, प्रॉपर प्लान नहीं है, उनके पास कोई रिटर्न प्लान नहीं है, तो दैट इज अ वीकनेस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग वीकनेस है, मैनेजमेंट वीकनेस है. अगर प्रॉपर प्लान एग्जिस्ट करते हैं तो देन दैट इज लाइक स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग अगर होगी तो बेसिकली इससे सिनर्जी आ जाएगी. प्लान है तो हम लोगों की हम लाइक वी कैन क्रिएट अ सिनर्जी बिटवीन द एफर्ट्स ऑफ द पीपल कि हमने किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है. अगर प्लानिंग ही नहीं है तो फिर कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे, मार्केटिंग वाले कुछ कर रहे होंगे, फाइनेंस और प्रोडक्शन वाले कुछ कर रहे होंगे. तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कि हम सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है. अगर सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है और सारे रिसोर्सेज सारे डिपार्टमेंट एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे हैं तो देन सिनर्जी क्रिएट होगी. सिनर्जी क्रिएट होगी तो हम उस ऑब्जेक्टिव को बड़ा जल्दी से अचीव कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने देखना है कि हम किस हद तक काम को ऑर्गेनाइज करते हैं. अचीव्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अचीव्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. और अगर ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉपर तो डिफाइंड टास्क एंड अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जब होगी तो हम लोगों को जिम्मेदारियां देंगे कि अच्छा भाई ये आप काम करें. उससे कुछ लोगों के पास अथॉरिटी आएगी कि अच्छा ये आपका सुपरवाइजर है, बाकी आपके टीम मेंबर हैं, टीम मेंबर्स ने ये काम करना है, सुपरवाइजर इसको मॉनिटर करेगा और प्लस ये रिपोर्ट देगा फर्दर ABCXYZ को. तो लाइक इससे आपकी लाइक एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होगी. सारे लोग एक ही काम करेंगे, वो जो काम ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं हम उसमें सारे लोगों से वो काम करवा सकते हैं. डिटरमिन हु रिपोर्ट्स टू होम, कि वो फिर किसको रिपोर्ट्स देगा. लाइक डिटरमिन व्हाट डज व्हाट, हु डज व्हाट बेसिकली. तो कौन क्या काम कर रहा है बेसिकली, दैट मैटर्स. ये ऑर्गेनाइजेशन से आएगा. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि जब हमारी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि हमने लोगों को जिम्मेदारियां नहीं दी होती. आपने देखा कभी कुछ लोगों से जाके पूछे कि आप यार ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करते हैं, उसे पता ही नहीं होगा कि मेरे काम क्या है. अगर उसे पता नहीं है कि मेरे काम क्या है तो इट मीन उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस फर्म में ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती. अगर एक आदमी को पता ही नहीं कि मेरा काम क्या है तो वो क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. इट मीन ये उस ऑर्गेनाइजेशन की एक मैनेजमेंट वीकनेस है या उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की वीकनेस है कि उसने लोगों को बताया ही नहीं कि आपके काम क्या है. ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कुछ लोग फ्री में बैठे हैं. तो लाइक ये एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस है. मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है वो वीक है उस फर्म का. तो हमने इस चीज को भी देखना है. ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ टास्क इनटू जॉब के छोटे छोटे कामों में हम लोगों को जिम्मेदारियां दें. कंबाइनिंग जॉब्स टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट. फिर हम उन जॉब्स की बेसिस पे हम डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं कि अच्छे डिपार्टमेंट फाइनेंस के तमाम फंक्शन जो छोटे मोटे हैं फाइनेंस के अंदर डाल लें. जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स हैं उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दें. तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की आती डिपार्टमेंट हम डिवेलप कर लेते हैं, डेलीगेटिंग अथॉरिटी. तो लाइक आई थिंक आपको ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी हो सकती है और वीकनेस भी हो सकती है. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान एग्जिस्ट नहीं करते तो वो वीकनेस है. अगर प्लान प्रॉपर प्लानिंग होती है तो दैट इज स्ट्रेंथ. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती है दैट इज स्ट्रेंथ, अदरवाइज इट कैन बी वीकनेस. अब हम मोटिवेट कितना करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या लोग इतने सपोर्टिव हैं कि नहीं आप एक काम करो भाई और काम के लिए हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं. अगर लोग इस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं तो दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करता, हम लोगों को काम दे देते हैं और उसके बाद हमारी कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट, कोई ये अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स दैट इज अ वीकनेस. इन्फ्लुएंसिंग टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. अगर हमारे पास मोटिवेटिंग और लीडरशिप रोल नहीं है तो हम वो ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहते हैं वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. तो आपने देखा नहीं कि हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट
स्टार्ट करती है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होते। वो कंप्लीट क्यों नहीं होते? उनमें एक तो उसमें लीडरशिप का रोल नहीं होता, दूसरा ये कि उसमें कंट्रोलिंग भी नहीं होती, कि हम उसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट ही नहीं करते कि प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा। भी एक प्रोजेक्ट जिसने आज स्टार्ट होना था वो आज स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो साल बाद स्टार्ट हो रहा था, इसका मतलब वो साल तो कम से कम वो प्रोजेक्ट लेट हो गया। फिर हमारी आंखें खुलती है कि अच्छा 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 वो प्रोजेक्ट हमारा ना लेट हो गया। भाई ऐसे नहीं, आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ चलें, टाइम पे उसको स्टार्ट करवाएं, उसकी परफॉर्मेंस को साथ साथ मॉनिटर करते रहें, देन आप उस प्रोजेक्ट को टाइम पे उसकी कंप्लीशन को इंश्योर करवा पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा कर ही नहीं रहे तो वो प्रोजेक्ट कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। स्टाफिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि उस काम को जब उस ऑब्जेक्टिव को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या जो स्टाफ की ज़रूरत है तो वो क्या पूरी हो गई है या नहीं। अगर हमने स्टाफिंग की नहीं है, पता चले हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हैं बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके लिए स्टाफ ही नहीं है, तो भाई हम कैसे अचीव करेंगे, रिसोर्सेज के बगैर कैसे चल सकते हैं। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो हमने जब एनालिसिस करें तो हम ये भी देखें कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग है तो उसे यस कर लें, नहीं है तो नो कर लें। इसी तरह क्या मैनेजमेंट में, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में काम की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम डिवीजन ऑफ वर्क है, क्या लोगों को जिम्मेदारियां पता हैं, अगर है तो देन से यस, अगर नहीं है तो नो कर लें। इस तरह क्या प्रॉपर उसकी स्टाफिंग है, मोटिवेशन है, लीडरशिप का रोल है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। इस तरह स्टाफिंग क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ क्या शॉर्टेज तो नहीं है, अगर है तो देन ठीक है। जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या था यूनिवर्सिटी में कि कुछ डिपार्टमेंट में सिर्फ एक आध आदमी काम कर रहे थे, तो इट मीन्स सीवियर किस्म की शॉर्टेज थी स्टाफ की। तो उसके बाद क्या क्वालिटी और क्या चीज़ें पैदा होंगी। अब शुक्र है हमने उस पर कंप्रोमाइज, उसको हमने ओवरकम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लाइक वी आर सफिशेंट स्टाफ। फिर बिजनेस हम स्टेशन में माशाल्लाह 14 रेगुलर फैकल्टी मेंबर है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो लाइक स्टाफिंग को देखेंगे, स्टाफ का शॉर्टेज तो नहीं है, अगर शॉर्टेज है तो उसको कर लें कि जी वीकनेस है, अदरवाइज उसको स्ट्रेंथ में। एंड स्टाफिंग इंक्लूड रिक्रूटिंग, इंटरव्यू, टेस्टिंग, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, केयरिंग। अब उसमें बहुत सारे काम आते हैं स्टाफिंग में भी। आपने अब इन चीज़ों को भी देखना है कि क्या ये जो स्टाफिंग हम करते हैं, ये जो हमारे प्रोसेसेस हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, क्या ये ट्रांसपेरेंट है। अगर तो ये प्रोसेसेस हमारे ट्रांसपेरेंट हैं तो फिर हमारी ये स्ट्रेंथ है, अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो देन दैट इज योर वीकनेस। तो आपने इस पैरामीटर पे भी आपने एक चेकलिस्ट बना लेनी है। अब चेकलिस्ट आपने खुद बनानी है कि अच्छा जी, अच्छा क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट बड़े फेयर तरीके से होती है, इंटरव्यू फेयर तरीके से होते हैं, सिलेक्शन, लाइक दैट इज बेस्ड ऑन दिस यू विल डिटरमाइन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कंट्रोलिंग, फाइनल जो फंक्शन है मैनेजमेंट का। एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, क्या हमने कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अच्छा एक बच्चा जो है उसकी अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, उसकी जीपीए कितना होना चाहिए, उसका जनाब रेगुलरिटी कितना होना चाहिए, उसका जनाब ड्रेस कोड, प्रॉपर हेयर कट, क्या हमने कुछ स्टैंडर्ड ऐसे बनाए हुए हैं हर जॉब के लिए। अगर तो हमारे स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं तो देन दैट इज योर स्ट्रेंथ। अगर स्टैंडर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करते तो इट मीन हम फिर कैसे उस लोगों को एवेलुएट करेंगे परफॉर्मेंस को। अब हम कहते हैं कि अच्छा जी हम आपकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेंगे, लेकिन उस जिस बंदे की परफॉर्मेंस एवेलुएट करनी है उसको हमने कभी स्टैंडर्ड बताया ही नहीं कि हम किस बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस एवेलुएट करेंगे। इट्स मीन वीक स्टैंडिंग परफॉर्मेंस, वीक मैकेनिज्म है। इंश्योर एक्चुअल ऑपरेशन कंफर्म टू द प्लान्ड ऑपरेशन, टेक करेक्टिव एक्शन। तो लेकिन जब आप कंट्रोलिंग करते हैं तो फिर आपके पास ये मैच कर सकते हैं कि आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो जो प्रपोज परफॉर्मेंस के साथ कितनी मैच करती है। अगर मैच नहीं करती तो हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो अब आपने ये देखना है क्या कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं, क्या उन प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट क्या ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है। अगर किया जाता है तो ठीक है, नहीं किया जाता तो नो कर लें। क्या हम उस करेक्टिव एक्शन लेते हैं, कितनी दफ़ा परफॉर्मेंस साल में एवेल्युएट होती है। तो इस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कंट्रोलिंग किस हद तक है इस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है तो इट्स मीन दैट इज गोना बी वीकनेस। अब माय कंक्लूडिंग वर्ड्स कि आप क्वेश्चनर बनाओगे मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें 8-10 को आप क्वेश्चन लिखें कि हमारी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग है, और प्लानिंग करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। देन हर लोगों की, हर तमाम आदमियों की ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं, तमाम लोगों की जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की गई हैं और उसमें प्रॉपर हायरार्की हमने इस्टेब्लिश की हुई है, प्रॉपर स्टाफ एग्जिस्ट करता है और तमाम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बड़ी फेयर ट्रांसपेरेंट होती है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड हैं
और देन परफॉर्मेंस पीरियोडिक रिव्यू किए जाते हैं, उनको परफॉर्मेंस लोगों के साथ शेयर की जाती है। अब ये जो आप मैंने 8-10 क्वेश्चन बताए, आप इनको साइड पे लिख लें, और भी ऐड कर सकते हैं, दीज आर नॉट फाइनल वर्ड्स, तो आप ये लिख सकते हैं और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और देन आप ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखें कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही है या नहीं कर रही, एक टेबल बना लें, कर रही है या नहीं कर रही। अगर ऐसा आप कर लेते हो, प्लान डेवलप कर लेते हो इस तरह का टेबल, तो इससे आपको डिटरमिन कर लेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो एक अच्छी मैनेजमेंट है या वीक मैनेजमेंट है। अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो आप उसको स्ट्रेंथ डिक्लेयर कर देना कि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर आप में वो इन एरियाज में वो ठीक नहीं है तो इसको देन वीकनेस कंसीडर कर लीजिएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो वीक है। तो लाइक दैट इज आवर फर्स्ट कंपोनेंट। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे, आप इसको भी थोड़ा सा देख सकते हैं। अब ये कुछ चेकलिस्ट भी हैं जो मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बनाई भी गई हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। ये मैनेजमेंट की चेकलिस्ट है। मसलन डू मैनेजर डेलीगेट वेल, is the organization structure appropriate, are job description clear, are job specification clear, is employees moral high, is employees absentees low, is employees turnover low, are the reward mechanism effective, are the organization control mechanism effective। तो ये लग चंद क्वेश्चन है, मैंने भी 8-10 क्वेश्चन आपको बताए थे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें से भी यूज़ कर सकते हो। और एक पूरी चेकलिस्ट बना लो मैनेजमेंट की, तकरीबन 10 to 20 क्वेश्चन, और देन उसके बारे में उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करो। तो ये आपने ज़रूर करना है। तो आपने जब ये लेक्चर सुने तो उसके साथ साथ आपने एक, क्योंकि आप इंटरनल ऑडिट भी करना है अपने नेक्स्ट वीक में जो मुझे दिखाओगे, तो फिर आप इस चीज़ का लाइक वो चेकलिस्ट भी बना लें, और जो ऑर्गेनाइजेशन का आप एनालिसिस कर रहे हैं उनको उसकी बेसिस पे इसको टिक भी करते चले जाएं ताकि आपको पता चल सके। लेट्स कम टू मार्केटिंग जी। अब ये नेक्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट, वो मार्केटिंग है। कस्टमर नीड्स और वांट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें हम लोगों की नीड्स एंड वांट्स को जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा है, एग्जिस्ट करता है, हम उसको प्रॉपर मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं कि हम लोगों की नीड्स वांट्स को जानने के लिए और फिर उसको अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और देन हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो दैट इज़ आवर स्ट्रेंथ। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो भाई हमारी मार्केटिंग भी एक वीकनेस है। सो डिफाइनिंग, एंटिसिपेटिंग, क्रिएटिंग एंड फुलफिलिंग दोज नीड्स। अब मार्केटिंग फंक्शन में हम क्या करेंगे, कस्टमर एनालिसिस। क्या हमारे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है कि हम कस्टमर एनालिसिस करें, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, क्या चाहते हैं, हम उनके साथ कोई फोकस ग्रुप करें, कोई डिस्कशन करें, कोई सर्वे करें, कोई चैट करें उनके साथ। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे प्रोसेसेस हैं, इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि हम प्रॉपर एक फोकस ग्रुप करते हैं, कस्टमर से मिलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या चाहते हो, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो नहीं हो, क्या आपकी नीड्स हैं, किस तरह की बेहतरी चाहते हैं प्रोडक्ट में। अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो इट्स मीन वी आर कंडक्टिंग कस्टमर एनालिसिस, एक अच्छी बात। अगर नहीं है तो फिर उसको भी लिख लें कि ये नहीं है, कस्टमर एनालिसिस नहीं कर रहे। सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो क्या हम प्रॉपर उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिज़ाइनिंग के लिए हमारी कोई प्रॉपर प्लानिंग है, प्राइसिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव है, मार्केटिंग रिसर्च उसके लिए करते हैं, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस किया जाता है कि नहीं। लाइक पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि पहले तो कस्टमर एनालिसिस, फिर कस्टमर एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या जो प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो उन कस्टमर के फीडबैक की बेसिस को माइंड में रख के बना रहे हैं, क्या जो प्राइसिंग है वो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, क्या जो प्लेसिंग है, क्या प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन वो जो जिसे हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, क्या इसमें कोई इंटीग्रेशन है। अगर तो हमारी सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स जो मार्केटिंग मिक्स के एक ही मैसेज दे रहे हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। समटाइम प्रोडक्ट में हम कह रहे हैं बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट और प्राइस हमने लो रखी होती है, और लो प्राइस ये मैसेज देगी कि लाइक दिस प्रोडक्ट इज नॉट क्वालिटी प्रोडक्ट। समटाइम प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है लेकिन हम जो बेच रहे होते हैं हमारी प्रोडक्ट पता चले कि जस्ट हम हॉकर्स उसको बेच रहे हैं, तो दैट गोना गिव अ रॉन्ग मैसेज कि प्लेसिंग हमने रॉन्ग की हुई है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, प्राइसिंग भी ठीक रखी हुई है, लेकिन हम बेच रॉन्ग जगह पे रहे हैं। तो क्या हमारे जो मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, क्या उसमें इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। अगर तो इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करती है और मार्केट हम कस्टमर एनालिसिस भी कर रहे हैं तो देन इट मीन्स वी आर गुड इन मार्केटिंग। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो देन दैट गोना बी आर वीकनेसेस। तो हम इस चीज़ की भी एक चेकलिस्ट बना लें। कस्टमर एनालिसिस का हमें फ़ायदा क्या होगा। कस्टमर एनालिसिस बेसिकली हम कस्टमर सर्वे करें, कस्टमर इन्फॉर्मेशन लें, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमने लो मार्केटिंग पोजीशनिंग हम करने में हमें पता चलेगा, लाइक हमें आइडिया होगा कि हमने
किस बेसिस पे हमने पोजीशन करना है मार्केट में, मार्केट सेगमेंटेशन में हमें हेल्प करेगा कि कौन हमारी मार्केट है और उसमें हमने क्या किसको पोजीशन करना है। कस्टमर की प्रोफाइल बना सकते हैं कि अच्छा इस मार्केट में इसमें ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मांगते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्राइस कॉन्शियस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस हैं, कुछ ऐसे हैं जो लाइक लीडर्स होना चाहते हैं। तो लाइक हमें जब तक हम कस्टमर का एनालिसिस नहीं कर लेंगे हमें किसी बात का पता नहीं चलेगा। जब हमें किसी बात का ही कस्टमर के बारे में नहीं पता चला कि इस मार्केट में किस तरह के लोग रहते हैं, कितनी उनकी बाइंग कैपेसिटी है, कितना पे कर सकते हैं, जब तक हमें इन आइडियाज़ का, इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा तो हम शायद प्रॉपर मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च ही नहीं कर सकते। तो कस्टमर एनालिसिस में हम कस्टमर सर्वे, तो अब ये भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर एनालिसिस है, और कस्टमर एनालिसिस के अंदर फर्दर आप 4-5 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और उसमें क्या लिखें कि आपने क्या कस्टमर सर्वे कंडक्ट किया जाता है, क्या हम कस्टमर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कंडक्ट की जाती हैं। तो लाइक इस तरह का आप एक चंद चीज़ें लिख लें, क्वेश्चन बना लें। अगर ऐसा होता है तो फिर लाइक हम इसमें कस्टमर एनालिसिस कर रहे थे। सेलिंग एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या हम हमारी चीज़ें कैसी हैं कि जो हम पर्सनल सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन, डीलरशिप रिलेशनशिप, तो हम किस हद तक इन चीज़ों को कर रहे हैं और ये कितना सपोर्टिव है। लाइक हमें इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा सर्च करना है। इसी तरह मैंने कहा कि आप क्वेश्चन एक बना लें, चेकलिस्ट बना लें सारी मार्केटिंग रिलेटेड के। अच्छा जी, हम प्रॉपर कस्टमर सर्वेज हैं, कस्टमर एनालिसिस हम करते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस हम प्रॉपर लाइक प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए हम अप्रोप्रिएट टूल्स को यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इस तरह हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखती है, प्लेसिंग के लिए हम अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, प्राइसिंग हमारी अप्रोप्रिएट है, कंपेटिटर के साथ कंसिस्टेंट है, इसी तरह प्रमोशन के लिए हम अप्रोप्रिएट मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो चेकलिस्ट है 8-10 क्वेश्चन की, ये बना लें और देन फिर अपनी कंपनी को सामने रखें और उस बेसिस पे डिसाइड करें कि क्या ये बात ठीक है या नहीं है। तो लाइक दैट इज़ इन दिस वे यू विल बी एबल टू ट्रेस इट आउट दैट कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि आप मार्केटिंग की ना वो चेकलिस्ट बना लें, 10 to 15 क्वेश्चंस आप लिख लें उस चीज़ को, और देन ईच क्वेश्चन के अगेंस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एवेलुएट करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो मार्केटिंग फंक्शन को किस हद तक उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, आपकी मार्केटिंग प्रमोशन किस हद तक अप्रोप्रिएट है, आपकी प्रोडक्ट्स किस हद तक कस्टमर की नीड को मीट करती है और उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, प्लेसिंग कितनी है, प्राइसिंग आपकी कितनी अप्रोप्रिएट है। तो लाइक दैट कैन हेल्प यू आउट टू डिसाइड अबाउट योर मार्केटिंग कैंपेन। तो इस तरीके से मार्केटिंग का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल कौन से यूज़ कर रहे हैं, रिटेल लोकेशंस क्या है, सेल्स टेरिटरीज, इन्वेंट्री लेवल्स, ट्रांसपोर्टेशन, लाइक आपने ये सारे उसमें मार्केटिंग में आ जाएंगे। मार्केटिंग रिसर्च, गैदर डेटा, रिकॉर्ड एनालिसिस, तो मार्केटिंग रिसर्च हम किस हद तक कर रहे हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, असेसिंग कॉस्ट, असेसिंग बेनिफिट्स, असेसिंग रिस्क। तो मार्केटिंग ऑडिट करने के लिए आप कुछ और भी ये चेकलिस्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किए आप उसको भी शामिल कर लें कि क्या मार्केट आपने प्रॉपर सेगमेंटेड है, क्या आपको पता है कि हमारी मार्केट में हम इन मार्केट में ऑपरेट करें। इज़ द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशनड वेल अमंग कंपेटिटर्स। तो ये क्वेश्चन है, हैज़ द फर्म्स मार्केट शेयर बीन इंक्रीजिंग, आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, इज़ द सेल्स फोर्स इफेक्टिव। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में किस हद तक अच्छी है। Does the firm conduct market research? Are the firm quality and customer service good? Are the firm's product and services priced appropriately? Does the firm have effective promotion, advertising, publicity strategy? तो बेसिकली वही 5-4 बातें जो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं उसी के बारे में ये 8-10 उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप अपने तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने यू नीड टू डिवाइज 10 to 15 क्वेश्चंस एंड देन evaluate your organization against these parameters. इस तरह कुछ और भी ये क्वेश्चन हैं, आप इस चीज़ को भी देख लें। लेट्स कम टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, दैट इज़ द थर्ड सेक्शन ऑफ योर थर्ड सेक्शन ऑफ योर इंटरनल ऑर्डर, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एज वेल।
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस के ये जो डिसीजंस हैं इनके बारे में आपकी क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रैक्टिसेस हैं? तो बेसिकली आपने ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करने के लिए आप उनके लिक्विडिटी रेशियोज़ को देखोगे, आप उनके जनाब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को और उन चीज़ों को। लिक्विडिटी में मींस कि फर्म्स एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ये एक पूरा एक चैप्टर है फाइनेंशियल रेशियोज़ का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने उसको रिकॉल करना है। लिक्विडिटी रेशियोज़ चेक करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, कि जिससे ये डिटरमिन करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती है। अगर तो कर सकती है तो ये आप उसको स्ट्रेंथ में ट्रीट कर लीजिए, अदरवाइज उसको वीकनेस में। और लिक्विडिटी रेशियो के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? करंट रेशियो कैलकुलेट करें, क्विक एसेट रेशियो को कैलकुलेट करें। इस तरह लिवरेज रेशियो में कि एक्सटेंट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, कि आपने किस हद तक डेट फाइनेंसिंग पे आप रिलाई कर रहे हैं, आपके कितने एसेट्स का कितना पोर्शन है जो डेट फाइनेंसिंग से आ रहा है। तो अगर आपके पोर्शन लाइक आपका मेजर पोर्शन या बहुत ज़्यादा पोर्शन आपके एसेट्स का डेट फाइनेंसिंग है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इट्स मीन अच्छा खासा बर्डन है जो आपके डेट बर्डन है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ट्रबल भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि किस हद तक डेट बर्डन है, और उसके लिए डिफरेंट रेशियोज़ हैं। डेट टू टोटल एसेट है, डेट टू इक्विटी का है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी है, टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो है। तो लाइक आपने इन चीज़ों को माइंड में रख के आपने डिसाइड करना है कि क्या डेट फाइनेंसिंग किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी डेट ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से अपनी डेट ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती है तो ये भी एक स्ट्रेंथ हो सकती है, एक वीकनेस नहीं एटलीस्ट, लेकिन ये भी एक पैरामीटर हो सकता है। एक्टिविटी रेशियो थे इफेक्टिव यूज़ ऑफ फर्म्स रिसोर्सेज, के फर्म अपने रिसोर्सेज को कितने इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, दैट मैटर्स। और इस चीज़ को चेक करने के लिए टू व्हाट एक्सटेंट द फर्म इज इफेक्टिव इन यूजिंग इट्स फर्म्स रिसोर्सेज, तो उसमें हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर है, टोटल एसेट टर्नओवर है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है, एवरेज कलेक्शन पीरियड है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपकी फर्म्स जो है वो कितने अच्छे तरीके से इन लाइक अपनी इन्वेंट्री टर्नओवर, एक कंपनी का मटेरियल बाय करती है, उसको जल्दी से फाइनल प्रोडक्ट बना देती है और मार्केट में बेच देती है, और वो इस तरह का काम कोई साल में 20 दफ़ा करती है, तो इट्स मीन इन्वेंट्री टर्नओवर 20 टाइम्स है साल में। तो एक कंपनी का टर्नओवर जस्ट 10 टाइम्स है, इट्स मीन जो कंपनी जिसका टर्नओवर 20 टाइम्स है इन्वेंट्री टर्नओवर, और जब दूसरी का जस्ट 10 टाइम्स है, तो 20 वाली बेहतर हुई। तो इस तरीके से आपने देखना है कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव यूज़ कर रही है या नहीं कर रही। तो इस बेसिस पे हम ये देखेंगे, एक्टिविटी रेशियोज को देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखेंगे, इफेक्टिवनेस शोन बाय द रिटर्न ऑन सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट, की आपकी किस हद तक आपके कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, हाईली अच्छे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। और उसके लिए हम क्या चीज़ चेक कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप रेशियो कैलकुलेट करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख लें, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स देख लें। अगर ये आपके रिजल्ट इंडस्ट्री एवरेजेस से बेहतर हैं या इंडस्ट्री से कंपेटिटिव हैं, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। तो आप इंडस्ट्री को बेंचमार्क ले लें, उसके साथ कंपेयर कर लें, और देन यू नीड टू कंसीडर इट एज ए स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और भी हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर है, प्राइस अर्निंग रेशियो है। तो देयर आर सर्टेन अदर पैरामीटर्स। आप इन चीज़ों की बेसिस पे भी आप जज कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस कैसी है। तो लाइक इस बेसिस पे देख सकते हैं। ग्रोथ रेशियो आप देख लें, फर्म्स एबिलिटी टू मेंटेन इकोनॉमिक पोजीशन, कि वो उसको किस हद तक मेंटेन कर सकती है, तो इसको भी आप देख लें और इस बेसिस पे डिटरमिन कर लें कि वो स्ट्रेंथ है या नहीं। अगर फर्म इज़ हाईली कैपेबल इनफ टू मेंटेन इट्स इकोनॉमिक पोजीशन, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। और उसके लिए आप सेल्स बढ़ती जा रही हैं, नेट इनकम बढ़ती जा रही है, रिटर्निंग अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एनुअल रेशियोज में सेल्स, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, एनुअल परसेंटेज ग्रोथ इन टोटल एसेट्स, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, दीज आर सर्टेन ग्रोथ रेशियोज। तो आप देखें, आप ये देखें, आप इस ये पिक्चर बड़ी अच्छे तरीके से बता रही है। आप ये देखें कि ये 2006 से 2008 के दरमियान कंपनी की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर थी, इट्स मीन कंपनी वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड। जबकि 2009 और 10 में कंपनी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री एवरेज से नीचे जा रही है, तो इट्स मीन कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है, इंडस्ट्री की बढ़ रही है।
इसी तरह अगर आप ये दूसरी प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को देखें तो कंपनी की 2006 से 2009 के दरमियान कंपनी की जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ सब्सटेंशली ग्रेटर देन इंडस्ट्री एवरेज, जबकि जस्ट लास्ट ईयर में 2010 में उसकी परफॉर्मेंस उससे इंडस्ट्री एवरेज से कम आई है। तो यानी कि 2009 तक कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो इसी तरह आपने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री एवरेजेस के साथ कंपेयर करना है और फिर देन आपने डिसाइड करना है कि वेदर इट्स योर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब आप ये देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर ब्रेक इवन चार्ट व्हेन प्राइस आर लो, तो लाइक आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट आप ये टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, आप ये देखें ब्रेक इवन पॉइंट है तो ब्रेक इवन से पहले टोटल रेवेन्यूज़ आपके टोटल कॉस्ट से कम है, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर आपके रेवेन्यूज़, तो दिस इज़ आवर ब्रेक इवन पॉइंट कि एटलीस्ट आपने इतने पॉइंट्स आपने ज़रूर सेल करने हैं ताकि आपकी कॉस्ट एंड जो रेवेन्यू है वो सेम आए पॉइंट पे। अब इसके बाद अगर सेल करेंगे तो देन यू गोना बी इन प्रॉफिटेबल। अगर आपकी परफॉर्मेंस ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे आपकी है सेल्स, तो इट मीन्स रेवेन्यूज़ जो हैं, तो इट मीन्स यू विल नेवर बी एबल टू, यू विल नॉट बी प्रॉफिटेबल। तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। अब ये देखें ब्रेक इवन पॉइंट पहले इस पॉइंट पे था, ये पॉइंट, अब ये क्यू इधर था, अब क्यू इट मीन्स यहाँ आ गया, इट मीन्स आपका ब्रेक इवन आगे चला गया। अब आपको और एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आल दो कि फिक्स कॉस्ट सेम है दोनों में, तो लाइक ये आपको जब तक आप एनालिसिस नहीं कर लोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है नहीं हो रही। अब इट मीन्स अब इन दोनों चीज़ों से ये पता चलता है कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। तभी पहले ब्रेक इवन पॉइंट आप यूँ समझ लें कि इस पॉइंट पे था, इससे थोड़ा सा नीचे, अब ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला गया। क्यों? इट मीन कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ गई है तो उस कॉस्ट को कवर करने के लिए ज़ाहिर है आपको ज़्यादा सेल्स चाहिए, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा आगे चला गया। तो लाइक ये अब जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, रेवेन्यूज़ बढ़ रही हैं, आपको कितने पॉइंट्स आपको यूनिट सेल करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होगे। तो लाइक दिस एनालिसिस विल हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब ये देखें, अब जब फिक्स कॉस्ट बढ़ी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट सब्सटेंशली बढ़ गया। तो इट मीन्स कि अब आपको इतनी यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए इतनी सेल्स करना पड़ेंगी। बिफोर एंड आफ्टर ब्रेक इवन चार्ट व्हेन फिक्स कॉस्ट आर इंक्रीज, जब प्राइसेस इंक्रीज व्हेन प्राइसेस आर लोअर्ड तो फिर ये होता है कि थोड़ा इम्पैक्ट आता है, लेकिन बट व्हेन फिक्स कॉस्ट इंक्रीजेज तो फिर ब्रेक इवन पॉइंट सब्सटेंशली इंक्रीज कर जाता है। तो इस चीज़ को भी देख लें। अब बिफोर आफ्टर ब्रेक इवन चार्ट व्हेन प्राइसेस आर लोअर्ड एंड फिक्स कॉस्ट आर इंक्रीज, आप देख लें प्राइसेस भी लोअर की, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ गया, देन भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आगे चला जाएगा। आपको ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो आप इन चीज़ों को एनालिसिस कर लें। फिनेंसिंग एंड अकाउंटिंग ऑडिट की भी चेकलिस्ट है, 10 to 15 ये चेकलिस्ट है, तो आप इसको भी देख लें। 9 है तो 9 आप इस चीज़ को भी देख लें कि फर्म्स का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, लिक्विडिटी किस हद तक पे कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक लिक्विड है, डेट ऑब्लिगेशन कब तक किस हद तक मीट कर सकती है। लाइक दीज आर द पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर कंपनी हैज़ अ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को भी देख लें कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, प्रोसेस कितने एफिशिएंट हैं, इन्वेंट्री हमारे पास कितनी पड़ी है, वर्कफोर्स कैसी है, क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस कैसी है। तो लाइक दीज आर सर्टन पैरामीटर्स, तो इसको भी आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में रेट कर सकते हो। देयर आर सर्टन चेकलिस्ट, आप इस चेकलिस्ट को भी देख सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन की आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कितना पॉजिटिवली लिया जाता है और किस हद तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कर रही है। तो लाइक इसको देख लें कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स बिफोर कंपेटिटर्स, इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, improving manufacturing processes to reduce cost. These functions can be done internally or externally. Like mean to say कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना पैसा लगा रही है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है और उसी की बेसिस पे अपने प्रोडक्शन को, अपनी प्रोसेसेस को, अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर किया जा रहा है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है तो दैट इज़ योर वीकनेसेस। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट कितना है, लाइक देयर आर सर्टन चेकलिस्ट, आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। MIS कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करने का कितनी डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं, कितने आपने अच्छे ऐसे प्रोसेसेस बनाए हुए हैं कि जिससे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ रही है और स्टोर होती जा रही है। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का डेटाबेसेस एग्जिस्ट करती हैं
प्रॉपर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं चीज़ों को स्टोर करने के लिए, चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, और डेटा को मेंटेन करने के लिए उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है, देन उसकी समरीज बनाई जाती हैं, मैनेजमेंट के साथ शेयर की जाती हैं। अगर हमारे यहाँ इस तरह के कोई प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं तो देन आप कह सकते हैं कि लाइक हमारे यहाँ बड़ी अच्छी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अगर हमने सारी चीज़ें फाइल्स में ही पढ़ी हैं और फिर पता ही नहीं है जब डेटा निकालना हो तो हम कोई डेटा नहीं रिट्रीव कर सकते, तो देन दैट इज़ आर वीकनेस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बेसिकली कोई डेटा बेसिस नहीं एग्जिस्ट करती। मतलब एक एम्प्लॉयज़ है जो 20 साल से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, हमें वो फिंगर टिप्स पे अवेलेबल नहीं है। हम उसकी फ़ाइल निकालेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट निकालेंगे, देन उसका एनालिसिस करेंगे, फिर हमें कोई पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो लाइक दिस नो गुड सिस्टम। तो बेसिकली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। अगर इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट करने के लिए कोई डेटा बेसिस एग्जिस्ट नहीं करती, एफिशिएंट डेटा बेसिस, दैट इज़ योर वीकनेसेस। तो ये भी इन पैरामीटर वे भी आप इसको एवेलुएट कर, देयर इज सर्टेन चेकलिस्ट जो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक फॉर दिस सेशन इट्स डन फ्रॉम माई साइड। अब बाकी नेक्स्ट जो हमने वैल्यू एनालिसिस और इंटरनल फैक्टर एवेल्यूशन मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव एंजॉयड इट, टेक केयर।